अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। Are you there? ये आपके दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। ठीक है मैम, आप मिलती नहीं। ठीक ठीक नहीं है, आप बहुत ठीक है कम मैम। आते हैं। चलिए ठीक है, आपकी टीम आपके साथ है। जी मैम। चलिए ओके। श्रीनगर, श्रीनगर। From Anantnag, ma'am. Assalamu alaikum. We've वाल- joined our extension educator, our cold chain technician, and Deputy CMO is busy because he's holding both the charges. So I've joined. Dr. Masood, you are there. Okay, fine. Yeah, I'm here. I'm here. Okay, fine. So, Deputy Srinagar, who is from Srinagar? Where is the team of Srinagar? Srinagar team. Nobody from Srinagar? Srinagar. Call Srinagar and ask them where are they. So, as all of you know, that today's meeting, the agenda for today's meeting is something different, which is new for all of you. But before we start that meeting, I would like to talk to all of my deputy CMOs, DIOs, DMEIOs, extension educators, and all the other members of our family welfare department. जैसे हम पहले भी मीटिंग्स करते आ रहे थे, खासकर जो हमारा वर्क फोर्स है फ्रॉम द FMPSWs अप टू द DMEIOs, इनके साथ आप रिपीटेड मीटिंग्स करते थे और हमने इनको कुछ जॉब फंक्शंस इनका अपना था, फिर हमने एक इनका वर्क प्लेटफॉर्म दिया था काम करने का और उसका फीडबैक हमको देने का दिया था। वो कुछ देर तक चलता रहा। आफ्टर दैट, आफ्टर सम स्टॉप्ड। एक स्टेप केयर टाइप का हमने बनाया था। चाहे इफ ही गोज इनटू द फील्ड, then field से आके he will give his feedback to the extension educator, and extension educator will give his feedback to the DMEIO, and DMEIO finally will give his feedback to the, but देखने में आ रहा है कि that all activity has again stopped, और जो feedback मुझे मिल रहा है from the districts कि there should be repeated meetings like that. But क्या आपको लगता है you people are all mature, you people are all sensible, you people are all now at that stage of life कि आपको बार बार ये चीजें कहने की जरूरत है? अगर मैं I am working at some level, you are working at some level, क्या किसी को पीछे से मुझे कहने की जरूरत है कि आप ये करो वो करो? एक बार, दो बार, तीन बार हमने ये चीजें आपको बताई हैं। Now the path is set, वो आपने करना है, बट वो दिख नहीं रहा है फील्ड में। द होल ब्रंट इज ऑन द FMPHWs, ऑन आवर आशाज, और बाकी का कहीं काम दिख नहीं रहा व्हाट दे आर डूइंग। उनका जॉब फंक्शन सेट है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, वो फीडबैक किसको दे रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट उनकी तरफ से कोई खास नजर नहीं आ रही। ये मैं इस मीटिंग के स्टार्ट पे इसलिए कहना चाह रही थी। मैंने कहा इस वक्त एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी आप लोगों से के साथ बात करने के लिए, बिकॉज अभी इस प्लेटफॉर्म पर हम सब लोग मौजूद हैं। वी आर ऑल प्रेजेंट हियर। मे बी डायरेक्टर मैम ऑल्सो ज्वाइन्स अस आफ्टर सम टाइम, शी इज दिस टाइम बिजी विद समथिंग, so she will be also joining with us. Now coming back to this the actual meeting, we had got a communication from IIT of Jammu. Basically we were provided, NHPC had provided the financial support of rupees 160
for projects under CSR, Corporate Social Responsibility Activity in Kashmir. It was intimated that as per Corporate Social Responsibility Policy Amendment Rules 2021, which were issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, an impact assessment study would be carried out through an independent agency by CSR projects with an outlay of rupees 1 crore or more. So the projects which were sponsored by NHPC, you all know that NHPC is National Hydroelectric Power Corporation, which is a government of India enterprise under the Ministry of Power. And in Kashmir, we were provided with some equipment under the when there was COVID-19 vaccination was going to be done in January 2020. So it included the augmentation of cold chain equipment infrastructure for COVID-19, and IIT Jammu had been appointed as the impact assessment agency for the projects sponsored by NHPC. And I got an communication from this IIT Jammu and one Mr. Hafiz Hakla Saab. He is an assistant incubation manager, IIT Jammu. He approached me with his team to assess the impact of these about the CSR activities of these equipments. Then we made some Google Sheets and we gave them to all the districts with some activities. But the feedback we got, the districts found some difficulties with these activities. And I got a feedback from the districts that there should be some virtual meeting regarding these filling of these Google Sheets or the other activities or some. So I found it better that we talk on this platform and with these the concerned IT personnel so that your queries are cleared. So, So we Dr. Nikhil, please mute your mic. Dr. Nikhil, please mute your mic. So, Hafiz Saab and his team had been here for 1 week from 26th to this February to 2nd of March, and they went to some districts also. Now the Google Sheets were not completed by the districts, so some were facing some difficulties in filling these Google Sheets. Today we have convened this virtual meeting. They will talk to you, and there will be this question answer session also. The agenda of this meeting is Mustafa. details of the impact assessment project, then description of data points required for impact assessment, then at the end will be doubts if there are any, and question answer session. So I would like to request Mr. Hafiz that kindly you start with your CSR impact of the projects. Good afternoon, ma'am. I'm Professor Manoj Agarwal from IIT Jammu. Hafiz Hakla Saab is part of my team, my research team. So we are undertaking this impact Very good assessment afternoon, study of. Mr. Manoj Agarwal. Very good afternoon. Good afternoon to you, and I'm thankful to you for convening this meeting and actually for all the field assistance that your team very ably gave us. So it is nice. So we could actually NHPC is very interested in knowing that whatever support they provided was put to good use, and it helped save lives during COVID. And actually, it was part of the support was provided under universal immunization program. But fact is that COVID happened, so it helped augment capacity at the most critical juncture.
and we were actually happy to learn from the field. We interacted with many of you that this equipment was being put to good use and came into good use during COVID. The main purpose of really these impact assessment studies is that we know or the companies know at least that whatever money they are spending. Excuse me, Mr. Manoj. Excuse me for interrupting. Would you like to give us your introduction, because I am not introduced to you? Okay, I am Professor Manoj Agarwal. I am a professor at IIT Jammu. I work in the area of innovations and startups and CSR activities and impact assessment. So this is a research project which we have taken up at IIT Jammu to see the impact of various initiatives taken by NHPC, not only in Jammu and Kashmir but all over the country. Many of these projects are in Jammu and Kashmir, like skill formation, like your augmentation of cold chain equipment, then certain civic infrastructure that we did in Bandipora, and certain Thank you so much, Mr. Manoj. distribution of assistive aids to handicapped people or differently abled people. And these are landmark initiatives, and it is very heartening to note that they are making a difference on the ground. At this point, I would, having introduced the concept, the idea is really to know कि equipment का वाकई जरूरत था तो whatever equipment was provided is being put to good use. What is the kind of data? How? Mr. Manoj, it would be better if we talk in Hindi, because we have a mixed gathering in this one. बिल्कुल तो बेसिक उसका मकसद ये है कि ये जो इक्विपमेंट दिया गया है, जो सपोर्ट दी गई है NHPC की तरफ से अलग अलग CSR प्रोजेक्ट में, इनका जमीन पे क्या फर्क पड़ता है, लोगों की जिंदगी में कैसे उससे बेहतरी आती है. तो पर्टिकुलरली मीटिंग कोल्ड चेन इक्विपमेंट के बारे में है. तो जो गूगल शीट आपसे शेयर की गई है वो ये जानने के लिए की गई है कि इक्विपमेंट का जरूरत था, उस हिसाब से इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो इक्विपमेंट का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, वो काम आया नहीं आया, या और कुछ और उसको आगे को कुछ सोचें तो कैसे बेहतर सोचें. इस मामले में आपसे फीडबैक लेने के लिए गूगल शीट शेयर की गई है. मेरी टीम के मेंबरान मेरे साथ हैं, हफीज साहब हैं और माजिद हैं और रेहान हैं. तो ये आपको अभी हफीज साहब आपको आगे बताएंगे कि जिन लोगों ने गूगल शीट भर दी है वो बहुत अच्छा है, जिनसे बात हुई है. जिन्होंने नहीं भरी है और उनके पास लिंक है वो आप भर दें, और यदि किसी को नहीं मिली है तो आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देंगे तो हम उनको वो गूगल फॉर्म शेयर भी कर देंगे. आपका अपना ग्रुप है तो उस पर शेयर कर लें. और ये डेटा जरूरी है कि ये डेटा हमारे पास अगले आज हम सोमवार पे बैठे हैं, ये डेटा हमारे पास शुक्रवार तक आ जाए तो वो आपकी फीडबैक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में शामिल हो जाएगी. और ऑफकोर्स डेटा तो कॉन्फिडेंशियल है, मतलब किसी का उसमें नाम आपको जाहिर करने की जरूरत नहीं है. तो वो डेटा कंपाइल हो जाएगा हमारे लेवल पे, तो एक प्रॉपर रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी चली जाएगी, NHPC को भी चली जाएगी. सो इट इज टू अ गुड पर्पस. दैट्स ऑल आई हैड टू से. मैं अभी अपने कलीग हफीज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में क्या डेटा पॉइंट्स हैं, क्या शीट में भरना है, आपको ब्रीफ कर दें. ओवर हफीज जी. Thank you, Manoj sir. Assalamu alaikum ma'am, and assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक मिनट. मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है अभी? जी विजिबल है. विजिबल. ये सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ. मेरा नाम हफीज़ है और मैं IIT जम्मू में एज असिस्टेंट इंक्यूबेशन मैनेजर काम करता हूँ. मैं मनोज सर के साथ ही काम करता हूँ फॉर बिजनेस इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए. और ये इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी है, ये IIT का प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोल्ड चेन इक्विपमेंट, जो सभी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स में दी गई है NHPC के द्वारा.
तो हमने आप सभी को ये एक गूगल शीट शेयर की थी जिसमें ये डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने यही डेटा पॉइंट्स सभी से मांगे थे। तो कुछ ने फिल भी किए हैं, कुछ का फिल हो भी नहीं पाया। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा ये डेटा पॉइंट्स है क्या, और एक सैम्पल डेटा शीट भी बताऊँगा कि जो आप हमें डेटा पॉइंट्स चाहिए थे उसमें हमें क्या क्या आंसर्स रिक्वायर्ड थे, ताकि आपको ईजी हो जाए, आपको एक रेफरेंस डेटा मिल जाए जिसके तहत आप अपना डेटा फिल कर सकें। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम आई होगी। इसमें यही था कि जो आपको इक्विपमेंट मिली हैं उनका नाम क्या है, और उसमें कितनी क्वांटिटी में इक्विपमेंट्स मिली हैं, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए या नहीं हुए वो तो हमने शायद दिया नहीं था, और इन्वेस्टमेंट कितनी वो आप में नहीं आएगी। आपको बस नेम ऑफ द इक्विपमेंट और कितनी क्वांटिटी में इक्विपमेंट दी है ये आपको डालना था। और मेरे को लगता है जो मैंने डेटा पॉइंट्स देखे हैं उसमें सभी ने ये चीज़ें सही डाली हैं। पर इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको वही इक्विपमेंट डालनी है जो आपको 2021 में एनएचपीसी के द्वारा आई है। फॉर एग्जांपल जो शॉर्टकट में हम बोल रहे हैं गोदरेज की इक्विपमेंट्स आई थी, तो गोदरेज की आपको इक्विपमेंट्स के नाम यहाँ पे डालने हैं और कितने नंबर्स आपको मिले हैं तो वो आपको डाल देने हैं। अगर आप रिमार्क सेक्शन में ये भी डाल देंगे किस किस ब्लॉक में एक गई है, दो गई है, तो हमारे लिए और फ़ायदा रहेगा। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है? ठीक। हाँ जी, अभी बता दीजिए, अगर किसी को इस जनरल इंफॉर्मेशन में कोई डिफिकल्टी है तो बता दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये जो आपने इसमें हमारे गोदरेज के ये जो सोलर इक्विपमेंट ये भी आप ही की तरफ से आया था? जी मैम, उस टाइम पे सिर्फ 3 इक्विपमेंट्स का हमें इम्पैक्ट असेसमेंट का बोला गया है, जिसमें ILRs हैं, डीप फ्रीजर्स हैं और वॉकिंग फ्रीजर्स हैं। अगर आपके पास इन 3 इक्विपमेंट्स में से कोई आए हैं तो उनका डालना है। अगर इसके अलावा सोलर नहीं आई है आप नहीं, तो क्योंकि वो भी सोलर इनकी तरफ से आया। चलो मैं, क्योंकि वो भी गोदरेज का है तभी मैंने ये क्लैरिफाई करना चाहिए। जी मैम, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन आपको उन ब्लॉक्स की डालनी है उस पॉपुलेशन को डालना है जिनको वो इक्विपमेंट्स केटर कर रही है। आपको पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन नहीं डालनी है, पूरे ब्लॉक की नहीं डालनी। फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ सेंटर आसपास के 10 पंचायत को केटर करता है तो आपको उस 10 पंचायत की पॉपुलेशन डालनी है, आपको उससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं डालनी। तो ठीक, तो जो नेक्स्ट हमारा डेटा पॉइंट्स था वो था वैक्सीन अवेलेबिलिटी को लेकर। तो जिसमें सबसे इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें आ रहे थे, फ़ोन भी कॉल में यही पूछ रहे ये डेटा है क्या है। तो पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा स्टडी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो हम स्टडी ये यहाँ मैंने सैम्पल डेटा बताया है, ये आपको जो सैम्पल डेटा दिख रहा है, पर इसमें हमने बिफोर एंड आफ्टर लिखा हुआ है। तो सैम्पल डेटा सिमिलर रहेगा बिफोर एंड आफ्टर का, क्योंकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि इक्विपमेंट आने से पहले क्या कंडीशन थी और इक्विपमेंट आने के बाद आपकी क्या कंडीशन बेहतर हुई या ख़राब हुई, वो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल इसमें टोटल डोजेज रिसीव्ड, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा कि कितने डोजेज रिसीव होते थे आपको। तो उस टाइम पे हमने क्वेश्चन ये आ रहा था कि हमको 2021 के पहले डालने, कौन सा फाइनेंशियल ईयर डालना है। आप एक प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का रख लीजिए, क्योंकि 2021 में इक्विपमेंट आई हैं, तो उसके बाद जो आपको डोजेस आते थे तो आपको उसमें डिटेल्स डाल देनी। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख डोजेज आपको आते थे तो आपने 5 लाख डोजेज डाल देना बिफोर में। और उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट में कितने आ रहे हैं तो आपको आफ्टर में डाल देना कि आफ्टर में कितने, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख डोजेज आ रहे हैं तो 6 लाख डाल देना, 5,50,000 डोजेज आ रहे हैं तो वो चीज़ें डाल देनी है। तो पहले डेटा पॉइंट्स में हम सीधा यही पूछना चाहते हैं कि पूरे सभी वैक्सीन्स के टोटल में कितने डोजेज आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल। तो हमें बोला कि पहले हमने ये बोल दिया कि कोविड-19 का, पर इसमें कोविड-19 का नहीं करना, हमें सभी वैक्सीन्स का डालना है। हमें आ रहा था कि 15 वैक्सीन्स का आ रहा है। जी सर। Hello. Hello, You जी are saying total doses received. It is only COVID vaccine or all vaccines? All the vaccines, sir. All the vaccines. It All was the under. vaccines, because जी treatment जी were सर। mainly meant for COVID. देखिए डॉक्टर मंसूर, बेसिकली ये जो इक्विपमेंट आया था ना, ये आया था असली RI ऑगमेंटेशन के लिए, बट चूंकि उस वक्त कोविड था तो उस वक्त हमारे को बल्क में आ रही थी कोविड की वैक्सीन, तो हमने यूटिलाइज किया इसको कोविड वैक्सीनेशन के लिए। बट दिस इज प्लीज आप कह रहे हैं दिस इज फॉर ऑल द वैक्सीन। Okay, मैडम। इनिशियली हमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, पर सर हमें NHPC की तरफ से कम्युनिकेशन आया कि कोविड उस टाइम पे हो गया,
पर ये सभी वैक्सीन के लिए इक्विपमेंट है, तो इसका असेसमेंट सभी वैक्सीन के लिए होगा। तो दूसरा मेरा टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल, जैसे बोलते हैं हमें सिर्फ कोविड वैक्सीन का डालना है, किसी और का वैक्सीन का डालना है, पर टाइप ऑफ वैक्सीन सभी वैक्सीन जो आप उसमें रखते हैं वो वाली डिटेल डालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। आप या तो ये करिए कि सभी वैक्सीन के नाम लिख दीजिए जो जो इसमें रखते थे बिफोर में, फिर उसके आफ्टर में भी अलग डाल देंगे कि नंबर ऑफ वैक्सीन बढ़ गई कम होगी। या तो मैंने यहाँ पे वैक्सीन के नाम लिखे, mRNA, वेक्टर, इनएक्टिवेटेड, ये मैं सभी वैक्सीन के नाम जानता नहीं, ये सिर्फ सैंपल डेटा है। तो बिफोर में आपको डालने पड़ेंगे, और आफ्टर में अगर फॉर एग्जाम्पल आपका नई वैक्सीन आई हैं तो हो सकता है कि वॉल्यूम किसी वैक्सीन को ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगी, आप रखते नहीं होंगे, तो आफ्टर में वो डाल देंगे। तो रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट, कि पहले आपकी वैक्सीन्स आती थी तो आप हफ्ते में कितनी वैक्सीन्स को रिप्लेस कर देते थे, जितनी मतलब पहले यूज़ हो रही हैं, तो उसके बाद वैक्सीन्स को रिप्लेस किया जा रहा है, रिप्लेनिश किया जा रहा है, वो आपको रेट डालना पड़ेगा। हमने पर वीक में लिखा है, आप पर वीक में भी डाल सकते हैं, पर मंथ भी डाल सकते हैं, जैसा आपका यूनिट आप वहाँ पे यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में से। तो स्टोरेज कैपेसिटी जैसे 6 लाख डोजेस में दिया है, पर क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर्स हैं तो इसको लीटर्स में आप दे दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल 1000 लीटर की कैपेसिटी है, तो 1000 लीटर की कैपेसिटी आप डाल सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी में। तो 1200 पहले 1000 लीटर की कैपेसिटी से इक्विपमेंट्स आने के बाद हमारी कैपेसिटी 1200 लीटर होगी, या 2000 होगी, 4000 होगी, वो आपको डालना होगा। तो क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जो वैक्सीन है वो स्टोरेज कैपेसिटी तो होती नहीं होगी यूज़, तो जो पहले बिफोर वाले में कि स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से कितनी वैक्सीन यूज़ होती थी वो डिटेल्स जाने। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे 83% थी, जैसे ही हमारी कैपेसिटी 12000 होगी तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो 60% होगी। मतलब हमारे पास बफर स्टोरेज ज़्यादा पड़ा होता है, ये मतलब दिस इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर, हम ये इसमें डाल देंगे। एक्सपेंशन कैपेबिलिटी थी कि अगर फॉर एग्जांपल हमें अपने डोजेस बढ़ाने हो, एक ही दम बढ़ाने हो तो पहले हमारे पास क्योंकि कैपेसिटी 83% यूज़ होती थी, तो हम ऑप्टिमाइज़ करके कितनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते थे वो डिटेल बिफोर में डालना पड़ेगा। और वही आफ्टर में जब हमारे पास वो वाली इक्विपमेंट्स आ गई तो उसमें हमारी एक्सपेंशन कैपेबिलिटी में कितना इंक्रीज़ हुआ। तो पहले 1 लाख डोजेस था, हो सकता है 1.5 लाख डोजेस को हम विदिन 30 डेज अपनी बढ़ा सकते हैं। कवरेज रेट, क्योंकि टारगेट पॉपुलेशन तो मैंने आपको बता दिया कि आपको वही पॉपुलेशन डालनी है जो जिस एरियाज़ को वो इक्विपमेंट कैटर कर रही है। तो पहले 75% होती थी, क्योंकि मुझे जितना पता है हर जगह पे 100% है, तो पहले भी 100% आएगा, तो लास्ट में भी आफ्टर में भी 100% आएगा। पर वो आपका जो ग्राउंड का डेटा वो आपको अच्छे से पता होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, तो एक पहले क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी को वैक्सीन लगानी है पर डे का आपने टारगेट रखा था 1000, पर आप 900 ही लगा पाते थे। 90% डिलीवरीज ऑन टाइम, पर जब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई तो आप फॉर एग्जांपल आपकी 5% एफिशिएंसी और बढ़ गई है, तो 95% डिलीवरीज ऑन टाइम आप ऐसे इसमें डाल सकते हैं। रीच इन रिमोट एरियाज़, जो वैक्सीन यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है वो कितने रिमोट एरियाज़ को कैटर करती हैं, जो आपके रिमोट एरियाज़ क्लासीफाइड हैं उसकी परसेंटेज डाल देंगे, 100% रिमोट एरियाज़ को मिलती है या 50% को मिलती है, वो आप डिटेल्स डाल देंगे। स्टॉक लेवल्स, तो इस टाइम पे आपने कितना स्टॉक मेंटेन करके रखा हुआ है, तो जैसे 5 लाख यहाँ का डोजेस का पूरा रिसीव हुआ था, इस टाइम पे 4 लाख का डोज है आपके पास, तो आफ्टर के बाद भी कितना स्टॉक लेवल आपके पास एवरेज स्टॉक लेवल रहता है वो आप डाल देंगे। स्टॉक आउट्स की, कभी ऐसा हुआ कि जो आपका स्टॉक है पूरा का पूरा ख़त्म हो गया और ये चीज़ें डाल देनी है कि सारा का सारा स्टॉक ख़त्म हो गया, तो क्योंकि जो आपकी वैक्सीन है रिप्लेनिश नहीं हो रही, तो आप इसमें डाल देंगे। तो बिफोर और आफ्टर में सेम। वेस्टेज रेट आपको परसेंटेज में डालना है कि आपकी वैक्सीन पहले कितनी वेस्टेज होती थी, हो सकता है टेम्परेचर के कारण ख़राब हो जाती थी, टेम्परेचर और या फिर और किसी लाइट बंद हो जाती थी, क्योंकि हमें बताया गया कि 8 घंटे तक इस कोल्ड चेन इक्विपमेंट में हम कुछ ना करें फिर भी हमारी वैक्सीन, बिजली बंद भी हो जाए, पावर चली भी जाए तो फिर भी हमारी वैक्सीन सेफ़ रहती है। तो इससे पहले हमारा कितना वेस्टेज रेट था, इसके बाद आने के बाद हमारा वेस्टेज रेट कितना कम हुआ या बढ़ा, वो आपको डालना पड़ेगा। कोल्ड चेन की कंटिन्यूटी, और ये सारी कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपने हमें बताया गया कि ये फ्रंट लोड है, टॉप लोड होता तो हमें फ़ायदा रहता, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो हैंडलिंग प्रैक्टिस, क्योंकि हमें ये भी बताया गया कि सभी स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, तो आप यही चीज़ डाल देंगे। अगर कोई कोल्ड चेन में आपके रेगुलेटरी कंप्लाइंस होंगे तो वो वायलेशंस होती हैं या नहीं थी, आप इसमें डाल देंगे। एडवर्स इवेंट्स, कितने एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट पहले होते थे या ना होते थे, तो इसमें वो डिटेल्स डाल देंगे।
तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल में कि आपको हर डेमोग्राफी, हर जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं वहाँ पे हमारी वैक्सीन पहुँच पाती नहीं पाती थी। रिमोट एरियाज़ में गुजर बकरवास रहते हैं, पहाड़ी एरियाज़ के रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं, वहाँ पे हमारी वैक्सीन पहुँच पाती थी नहीं पाती थी। आपको ये चीज़ें वहाँ पे डालने की 100% रिमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें डेटा डाल देंगे। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन यही SC ST स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए आपको डालना पड़ेगा कि हमारी वैक्सीन जो हमारे कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स उनको कैटर कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे, पहले नहीं कर पा रहे थे, अभी कर पा रहे हैं, कितना कैटर कर पा रहे थे, पहले 50% कैटर कर पा रहे थे, फिर 100, फिर 70% कैटर कर पा रहे थे। बिफोर एंड आफ्टर का डाटा आपको इसमें डालना है। अवेयरनेस कैंपेन में वो तो आप होते रहते हैं, अभी पीछे ही प्रोग्राम हो रहा था पल्स पोलियो का, वैसे ही आप कैंपेन्स के बारे में डिटेल्स डाल देंगे और कोई फीडबैक मैकेनिज्म होगा इन चीज़ों का तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। आपको इन डेटा को में कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। हेलो, इसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई क्वेश्चन है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स को लेकर तो आप पूछ सकते हैं अभी। तो मैम, हेलो, हाँ, do you have any questions? I think this is clear to all. ओके मैम। Now they तो can fill the Yes, I have a question, sir. जी Okay, सर। fine. सर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने बोला है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गूगल शीट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर है जी मेरे जी गूगल सर। शीट में यहाँ पे। तो बिफोर में हमें कौन सा डाटा लेना है, कौन से ईयर से, और आफ्टर में कौन से ईयर से लेना है? सर जो आपको इक्विपमेंट्स मिली 2021 में मिली है, पहले 2021 के पहले का, फिर 2021 के बाद का डेटा आएगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक, तो फिर हम नेक्स्ट जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा जो सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए हमने स्पेसिफिक रखे हैं तो वो चीज़ें डालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा स्पेसिफिक हॉस्पिटल के लिए था कि हमारे वैक्सीनेट। सर जी सर। जी मैम। जी, ये जो आप दिखा रहे हैं ना टोटल वैक्सीन डोजेस रिसीवर, इसमें हमें सिर्फ कोविड वैक्सीन का कि सारे वैक्सीन? सभी वैक्सीन का मैम। सभी वैक्सीन का टोटल वैक्सीन डोजेस रिसीवर लिखना है जी मैम। जी बिफोर 21 एंड आफ्टर 2020। जी बिफोर 20। जो आपने ILR हमें भेजा है, खाली उसी में जो वैक्सीन है वही लिखनी है कि सारी जो हमें आई है कोल्ड चेन पे? ना, जो बेसिकली जो ILRs हैं वो उसने आपकी कैपेसिटी को बढ़ाया है। वो तो सही बात है, लेकिन तो इससे पहले भी हमारी आपको पूरा 100% अचीवमेंट रहती थी। हाँ, तो आपको वो वही डालना हो है। गई, लेकिन 100% हमारी अचीवमेंट हमेशा रही है, हाँ लेकिन जी, 100 तो से ऊपर ही रही है। जी बिल्कुल, आपको वही डालना है जो आपके पास डेटा अवेलेबल है। पर ये ऑल वैक्सीन्स का जो इंफ्रा है उसने सपोर्ट किया है। इंफ्रा एक सेपरेट इंफ्रा नहीं आया है आपके पास, उसने सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट किया है तो आप उसमें तो हमारा ये है कि वो इक्विपमेंट जो आपने भेजे हैं वो डिफेक्ट है, वो चल नहीं रहे हैं। तो आप फीडबैक में डाल सकते हैं सर, वो जरूर। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर बेसिकली बहुत सारे हमारे जो इक्विपमेंट्स थे जो कोविड के दौरान दिए हमें, वो स्टैंड बाय है। उन्हें हमने बफर स्टॉक रखा था। बिल्कुल सर। सर उसमें तो हमने वैक्सीन यूटिलाइज नहीं किया है। तो सर आपका हमें अपना ही जो ILR से पुराने, तो हमने वो जो आपके थे जो वो सोलर वो रहे, हम वो बफर स्टॉक थे 1-2-3 सेंटरों पे, तो उनका लिखना है यूटिलाइजेशन जी। क्या आपको डालना है, बस आपकी ये फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी थी वो बढ़ जाएगी। जो बफर में भी रहा वो, पर वो आपकी कैपेसिटी में अवेलेबल तो रहेगा। 1000 से फॉर एग्जांपल आपकी कैपेसिटी 1500 होगी तो यूटिलाइजेशन रेट आपका कम हो जाएगा। बस कि पहले 83% यूटिलाइज करते थे तो अभी 40% यूटिलाइज करते हैं फॉर एग्जांपल। तो इससे क्या होगा, आपका बफर रेट बढ़ जाएगा। ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि फॉर एग्जांपल आगे कोविड जैसी कोई आपदा आ जाए तो उसमें वो बफर यूज हो सकता है। दिस इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। इससे मतलब कि हमारा कोल्ड चेन इंफ्रा और स्ट्रांग हुआ है। ओके सर, जी थैंक यू। और कोई क्वेश्चन?
ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो हमारे सोसाइटल इंडिकेटर थे, ये तो हमारे थे स्पेसिफिक वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इम्पेक्ट किया है हमारा पूरा का पूरा इस कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स ने। तो हम अभी सोसाइटी को कैसे इम्पेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं। एक है क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, एक है क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। क्वांटिटेटिव पैरामीटर ऐसे होंगे जिसको हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि 10 20 30 ऐसे करके। तो पहले इसमें भी हमने बिफोर एंड आफ्टर ही रखा वहाँ पे, वो ईयर सेम है, बिफोर 2021 आफ्टर 2021 जब हमारे इक्विपमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन वैक्सीनेशन रेट। पहले कितना वैक्सीन होते थे हमारे पर डे के हिसाब से, पर मंथ जैसे भी आप कैलकुलेट करते हैं, उसमें पर मंथ इंक्रीज कितना आया है वो हम इसमें डालेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हमारा 100 था, तो फिर हमारा 20% इंक्रीज हो गया, हम 120 डाल देंगे। वो हमें एक इंसाइट मिल गया। तो रिडक्शन इन डिजीज इंसिडेंस, अलग अलग तरह के डिजीज होते हैं, पर उन सारों का क्युमुलेटिव रहना है कि फॉर एग्जांपल पोलियो की वैक्सीन पहले कहीं पे नहीं थी, पोलियो तो इरेडिकेट हो गया हमारे यहाँ से। तो फिर भी पोलियो की उस टाइम पे कि अभी हमारे यहाँ पे कोई नई डिजीज़ नहीं आती, 30% रिडक्शन, 10% रिडक्शन, या फिर इंक्रीज़ हो रहा है तो 10% इंक्रीज़ भी आप डाल सकते हैं अगर वो नेगेटिव इंडिकेटर में आ जाए। तो मोर्टेलिटी रेट कि पहले कितनी डेथ होती थी, तो वैक्सीन कोल्ड चेन इंफ्रा के पहले हमारा 5% था, उसके बाद हमारा बढ़ के कम हो गया तो 2% बढ़ गया, तो वो आप डिटेल्स इसमें डाल सकते हैं। तो हेल्थ केयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्योंकि किसी की वैक्सीन है तो वो हॉस्पिटलाइज ज़्यादा हो रहा है, तो उसके कारण कितनी हमारी पहले ऑक्यूपेंसी यूज़ हो रही थी, तो उसके बाद हमारी कितनी ऑक्यूपेंसी यूज़ होना कम हुई, वो डाल देंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ऐसा रहेगा कि फॉर एग्जांपल कहीं पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, हमें हमारे जो वर्क फोर्स हमें ज़्यादा हायर करनी पड़ रही है, तो या फिर हमें ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो उसमें हमारा कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट लगता था, तो इन इक्विपमेंट्स के आने के बाद हमारा वो कितना कम हुआ है कॉस्ट, वो इसमें डाल देंगे। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि कोई बीमार होगा तो वो स्कूल में नहीं जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये डेटा शायद आपके पास अवेलेबल ना हो, अगर नहीं है तो आप NA लिख दीजिए, नॉट अवेलेबल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्योंकि अगर कोई बीमार ना होगा तो वो स्कूल में भी जाएगा, उसकी अटेंडेंस भी बढ़ेगी, कोई बीमार ना होगा तो वो काम करने भी जाएगा, अपने ऑफिस में भी काम करेगा, वो इसलिए हमने एक ये एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेट का रखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये डेटा हेल्थ डिपार्टमेंट से अवेलेबल नहीं होगा, तो आप NA ही भर दीजिए, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इक्विटी इन हेल्थ आउटकम्स, तो ये पहले भी जैसे हमने एक वैक्सीनेशन के पैरामीटर्स में रखा था कि एक्सेसिबिलिटी कितनी थी वल्नरेबल पॉपुलेशन में और जो SC STs में, तो स्पेसिफिक उनके हिसाब से उनमें कितना रेट कम हुआ है, SC STs में डेथ रेट वैक्सीनेशन के कारण कितना कम हुआ है, तो वो चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। और फिर क्वालिटेटिव, तो वो इसमें क्वालिटेटिव में आप डालेंगे कि अगर आपने कोई ट्रस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन बढ़ रही है, तो आप उसमें बोलेंगे 25% इंक्रीज़ हो रहा है, लोग इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे वैक्सीनेशन कम हो रही है, ये आप इसमें डिटेल डाल सकते हैं। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, तो अभी नए नए कैंपेन्स या सिर्फ लेटेस्ट कैंपेन हुआ है, उनकी कितनी पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई NGO आपके पास आ रही है कि हमें आपका कोल्ड चेन इक्विपमेंट यूज़ करना है, या फिर कोई गवर्नमेंट और कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, प्राइवेट कंपनी आ रही है कि हमें आपका कोल्ड चेन इक्विपमेंट यूज़ करना है, तो आपकी कोलैबोरेशन की डिटेल्स बता सकते हैं। तो पॉलिसी इन्फ्लुएंस की, इसके कारण कोल्ड चेन के कारण आपने कोई इसमें नया चीज़ लाई है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला बहुत ज़्यादा बफर आ रहा है हमारे पास, तो उस बफर को कैसे यूज़ करना है, उसमें कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स आप डाल देंगे। सोशल कोहेजन में रहेंगे कि जब हम इवेंट्स करवा रहे हैं तो कितने लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो कल्चर एंड बिहेवियर चेंजेस, जो ये तो कश्मीर का मेरे हिसाब से हर जगह पे सेम रहेगा, क्योंकि कल्चर इज़ समवट सिमिलर, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म हेल्थ में लोगों का क्या ख्याल आ रहे हैं कि ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रही है तो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि ये सोसाइटल इम्पैक्ट है, ये इट इज़ नॉट कम्प्लीटली टेक्निकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट यूज़ करता है, बट CSR में दिस इज़ द मेन थिंग विच वी लुक फॉर। तो इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। नहीं, how do we make like things like reduction in disease incidence? How do we explain this before and after? हाँ, आप फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन रेट आपके बढ़े ना, तो उसके बाद जो डिजीज़ की अकरेंस कितनी हो रही है, उस सिमिलर डिजीज़ सभी कम्युलेटिव में कितने डिजीज़ हमारे अकर हो रहे हैं, तो आप उसमें डाल सकते हैं। पहले हमारे इतने डिजीज़ आते थे। जी जी मैम। No, I want to know how can an equipment help us in this? हाँ, जब हम हमारी जी जी मैम।
disease incidence depends on like vaccines. We can say vaccine diseases, but we don't have any such diseases here. And we don't have data for this that we will fill in it. तो मैम So इसमें इक्विपमेंट का हेल्प सिर्फ वैसे ही है कि फॉर एग्जांपल वो वैक्सीन रखी जाती थी उस टेम्परेचर पे, उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, तो इक्विपमेंट ने उस तरीके से हेल्प किया, उसने डायरेक्टली हेल्प नहीं किया, बट फॉर द स्टोरेज उसने हेल्प किया है। पर इफ़ देर इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ डिजीज अवेलेबल, तो आप उसमें नहीं डाल सकते हो, छोटा सा रिमार्क लिख देते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, तो उसमें नोटेड, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। no, these are such things we cannot make up how we will link them with cold chain equipment. That's the thing. We have data like we have mortality rate, but that does not, how does it link with this cold chain point? And it is mortality linked to, has nothing to do with our vaccines. It is linked to that cold chain point only if जो वैक्सीन्स उस डिजीज को कैटर करती थी तो वो उस इक्विपमेंट में यूज होती हैं, तो कोल्ड चेन इंफ्रा में यूज होती हैं, तो देन यू कैन यूज दैट। Okay. जी। एनी अदर क्वेश्चन? क्योंकि ये पैरामीटर्स मेरे हिसाब से मुश्किल पैरामीटर्स हैं उनसे, क्योंकि वो तो अवेलेबल रहेंगे, ये अवेलेबल नहीं रहेंगे सभी के पास। हेलो हेलो जी। एक्चुअली आई हैव एन क्वेरी। यस तो हमारे पास यूआईडी में 10 वैक्सीन होते हैं, सर। और कोविड में लेट्स सपोज हमारे पास 3 वैक्सीन आए थे, सो इन टोटल वी हैव अराउंड 13 और 14 वैक्सीन। जी सर। सो अगर हम देखें वैसे उस हिसाब से, तो हमारी तो जो डिजीज है जो ये कैटर कर रही है ये सारी वैक्सीन, वो तो अभी भी चल रही है, सिर्फ बीओपी हमने काबू किया, बाकी तो होती रहती है। तो हम इसको बिफोर और आफ्टर में क्या करें वैसे? नहीं, बस वही आप स्पेसिफिक पैरामीटर बोलेंगे सर, या मैं ओवरऑल बताऊं इसमें? ओवरऑल ही। हाँ जी सर। ओवरऑल में सर सारे पैरामीटर्स यही हैं कि जो आपके पास डेटा पॉइंट्स पहले अवेलेबल थे, तो उसमें जो बदलाव आया आपको वो सीधा डाल देना, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली वही, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स में बोला, तो जैसे आपने बोला टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल, तो आपके पास पहले 10 वैक्सीन से आपके 13 हो गई हैं, तो आपको बस वो स्टोरेज में आपको वो डेटा डाल देना, बस उसमें और कुछ नहीं करना है। वो तो ठीक है, स्टोरेज में जो ये जो रिडक्शन इन डिजीज इंसिडेंस, तो फॉर एग्जांपल हमारा कोविड हो नहीं रहा, तो मतलब इसने एक तरह का हेल्प किया है, तो आप उसमें ये भी कोविड का आप 0 डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर आप ओवरऑल भी डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारा बिफोर डेटा है उसमें तो कोविड था ही नहीं। बिल्कुल सर। तो इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे होगा, क्योंकि कोविड तो था ही नहीं इससे पहले। हाँ, और जो आफ्टर में कोविड आया है उसमें, और टेक्निकली वो फिर खत्म भी हुआ, वी आर नॉट डूइंग दैट एनीमोर, सो इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस तो होगा ही नहीं ना सर। इसमें सिर्फ कोविड का नहीं ना कर रहे, हम ओवरऑल का कर रहे हैं अंडर यूआईपी, सिर्फ कोविड का नहीं देख रहे ना। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि बिफोर तो मेरा कोविड था ही नहीं, मतलब सपोज देयर वाज नो कोविड इन 2019, राइट, एंड 2021 में कोविड था। सो इसमें तो मेरा डिजीज जो इंसिडेंस है वो मेरा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? फिर पहले आपका डिजीज इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है, पर आपका जो एक इसमें वो 2-3 डेटा पॉइंट्स रहेंगे, जो टाइप्स आपके डोसेज रिसीव्ड बढ़ जाएंगे, फिर आपके जैसे आपकी कोविड वैक्सीन आई सर, टाइप्स ऑफ वैक्सीन बढ़ जाएंगी, आपकी रेट ऑफ रिप्लेसमेंट भी बढ़। व्हाट शुड वी राइट इन दिस रिडक्शन इन डिजीज इंसिडेंस? बिफोर में वी हैव टू पुट सम वैल्यू like 1 2 3 4, or we have to keep like increase or decrease, वैसे कुछ लिखना है सर? ये आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से आप सर ऐसा कर दीजिएगा, आप डिजीज वाइज अगर लिख दें तो हमें और फायदा रहेगा, डिजीज वाइज। तो इसमें we have ओके फाइन जी सर, क्योंकि सर ऐसे मैंने कंसीडर नहीं किया था, बट हाँ ये क्वेश्चन इज क्वाइट वैलिड। थैंक यू जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मेरी एक सभी से रिक्वेस्ट है
क्योंकि हम जो ज़्यादा सभी जगह पे गए थे तो हमने कवर किया था गांदरबल, श्रीनगर और ये बांडीपोरा। हमने वी ट्राई टू कवर बारामूला, पर उस टाइम पे क्योंकि पीएम साहब की विजिट थी तो वो कवर हो नहीं पाया, क्योंकि ऑल द हेल्थ पर्सनल वर वेरी बिजी। तो हमें एक रिक्वेस्ट है कि जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स के हमने जितने फ़ोटोज़ ले सकते हैं हमने लिए हैं, पर फिर भी जो आपके अलग अलग ब्लॉक्स में एक जियो टैग और एक नॉन जियो टैग फोटोग्राफ हमें शेयर कर दें तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि हमारा जियोग्राफिकल रीच कहाँ कहाँ पे रहा है। Excuse me, sir. जी मैम। Basically, your team has visited in district Gandarbal. हाँ हाँ, गांदरबल का But है हमारे पास presently, पूरा। yes. Our COVID ILRs are in a standby mode. हाँ हाँ, So कोई we will बात नहीं, fill आप the स्टैंड data बाई वाले फोटोज accordingly. भेजिए मैम। We will fill the data accordingly because we have only utilized them in COVID times. बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही। अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो आई थिंक दे कैन आस्क, क्योंकि हमारे पास ठीक ठाक टाइम है मेरे हिसाब से। Sir, I will request you to kindly send some samples so that we can get a reference from that sample. ओके सर, आई विल sheet. शेयर दिस सैंपल विद एडी मैम, और एडी मैम आपको फॉरवर्ड कर देंगे सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। Sir, kindly share your phone number, cell number, so that in case of any difficulty, we will contact you. ओके सर, आई एम राइटिंग माई फ़ोन नंबर हेयर। और सर जो हमने गूगल शीट की है वहाँ पे हमने अपनी टीम के सभी के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं। अगर कोई डिफिकल्टी आएगी, we will contact you. जी सर, जी ज़रूर सर, नो प्रॉब्लम। Okay, thanks. ये मैंने अपना मैसेज पिन कर दिया इसमें, तो यू कैन सेव माई नंबर। अगर आपको किसी भी टाइम पे कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं सर। तो आई थिंक वी आर डन। मैम, आर यू है मैम? तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन होगा, मैंने आपको अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दिया है, नहीं तो हाँ, आप। जी मैम। हाँ सर, मुझे एक बात बताएं। जी मैम। मैं डिस्ट्रिक्ट से पूछना चाहती हूँ कि क्या उनको अभी कोई और क्वेरीज है? क्योंकि इनने भरना है गूगल शीट, तो आप अपना फोन नंबर अपने से उस गूगल शीट के नीचे हमने वो कांटेक्ट नंबर भी रखा था। जी बिल्कुल रखा है। फिर भी उसके बाद कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी इनको भरने में। इवन देन दे कैन कॉल यू। जी मैम, वे मैं सैम्पल डेटा की शीट्स आपको शेयर कर दूंगा मैम, तो आप इनको शेयर कर दीजिए ताकि डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा और आसानी मिल जाए, रेफरेंस मिल जाए कि हमें किस टाइप का डेटा वहाँ पे डालना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much. I would like to request all the districts to be with me for some time. And thank you, Hafiza. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Have a nice day. You can take leave. Thank you. Okay, thank you.